Good morning to all of you. In previous lecture, we have studied what is continuous and definition of the continuity and definition of the continuity. Today we will discuss related numericals. In previous lecture, we have to already discuss definition of the continuity. Now here the questions. Discuss the continuity. Discuss the continuity of the function f given by f of x equal to modulus x at x equal to 0. This is the question. Discuss the continuity of the function f given by f of x equal to modulus x at x इक्वल टू 0. हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है. नाउ वी हैव डिस्कस इन दिस वे सॉल्यूशन by definition f of x equal to x minus x if x is less than 0, x if x is greater than equal to 0. This is the definition of modulus x. Minus x if x less than 0, plus x if x greater than 0. This is the definition of modulus x. जो फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस x, वो मॉडुलस x का ये डेफिनीसन है. माइनस एक्स इफ x लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. Clearly the function is defined at x equal to 0. And f of 0 equal to 0. This is x equal to 0. Here is 0. So f of 0 equal to 0. Left hand limit of f at
0 इज। फंक्शन तो हम चेक कर लिए। मैंने बार बार कहा था कि जब कोई फंक्शन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर दिया गया फंक्शन किसी दी गई पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है तभी हम लेफ़्ट लिमिट एंड राइट लिमिट चेक करेंगे। यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है यानी 0 है, तब हम आगे चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू 0 इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, दिस इज 0 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, हियर माइनस एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, माइनस एक्स है। माइनस एक्स इक्वल टू 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x विल बी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेके चलेंगे तो x माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट माइनस एक्स इक्वल टू 0। Similarly, the right hand limit of f at x equal to 0 is right hand limit x equal to 0, here limit x tending to 0 f of x equal to limit, here plus x tending to 0, here x equal to 0. Thus the left hand limit and right hand limit and the value of the function and the value of the function coincide at x equal to 0. Hence f is continuous. कोई भी फंक्शन जब दिया रहेगा तो सबसे पहले उस फंक्शन में दी गई पॉइंट को रख के वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे जो दिया गया फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है यानी जो जिस पॉइंट पर वो वैल्यू दी गई है वो फंक्शन वो वैल्यू दे रहा है तो हम लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये तीनों निकालेंगे। तीनों की वैल्यू अगर इक्वल है, कोइंसाइड कर जा रही है, तब कहेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। Now another example will be given here.
another example is here. So that the function the function f given by f of x equal to x cube plus 3 1 if x is not equal to 0, x equal to 0. This is the given function. Is not continuous. At x equal to 0. This is the question. Not continuous. Main important of this question, not continuous. Till today we have to prove the function is continuous, but this is the example of not continuous. So that the function f given by f of x equal to x cube plus 3 if x is not equal to 0 and 1 x equal to 0 is not continuous at x equal to 0. अभी पानी ना पड़े. At x equal to 0. This is the question. Very important this question. Now solution. The function is defined. At x equal to 0. The function is defined at x equal to 0. And its value at x equal to 0 is 1. The function is defined at x equal to 0 and its value at x equal to 0 is 1 when x is not equal to 0. The function is given by polynomial limit x tending to 0 f of x equal to limit x tending to 0 x cube plus 3. This is the function. Now putting here x equal to 0 plus 3 will be 3. X is not equal to 0. The function is given by the polynomial is 3. Since the limit of f at x equal to 0 at x equal to 0 does not coincide
does not coincide with f of 0, the function is not continuous. The function is not continuous at x equal to 0. It may be noted that x equal to 0 is the only point the constant function of discontinuity for this function. In this question, listen here. In this question, if we check the function is exist or not, when we put the value of the point x equal to 0 where the function is not continuous, where x equal to 0 the function value is 1 and another value is 3, then the function is not defined at x equal to 0. एक ही पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है, इसलिए फंक्शन डिफाइन नहीं है. जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो वो इसी तरह डिसकंटिन्यूटी हो गया. हम आगे लेफ़्ट और राइट डिसकंटिन्यूटी नहीं चेक करेंगे. जब हमें एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी मिल गई तो हम आगे नहीं चलेंगे. अगर फंक्शन डिफाइंड होता तो चेक करते राइट लिमिट लेफ़्ट लिमिट. अगर उनमें से कोई अगर डिस्टर्ब करता, कोइंसाइड नहीं होता, तब मानते कि डिसकंटिन्यूअस है. लेकिन जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, फंक्शन में ही हमें डिसकंटिन्यूटी मिल गया, इसलिए हम राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट नेसेसरी टू चेक. हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है. जब हम एक ही पॉइंट पे हमें डिसकंटिन्यूटी मिल गई तो फिर इसी को हम मान लेंगे, फिर हम इसी को डन मान लेंगे. Now here another question is here.
The function is defined. Check the point. Check the point. Check the point where the constant function. Check the point where the constant function. Check the point where the constant function f of x equal to k is continuous. कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ये चेक करते हैं. चेक द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चेक द पॉइंट where the constant function f of x equal to k is continuous. The function is defined. Solution. The function is defined at all real number. The function is defined at all real number. The function is defined at all real number C, and by definition number C, and by definition its value at any real number equal k. हम सेट ऑफ रियल नंबर में से एक कांस्टेंट c ले लिए, जो एक कांस्टेंट c जो दिया गया कांस्टेंट k के इक्वल है. वही कह रहा है कि ऑल रियल नंबर c एंड बाय डेफिनीशन इट्स वैल्यू एट एनी रियल नंबर इक्वल टू k. हम एक रियल नंबर में से कोई पॉइंट c लेते हैं और उसमें से किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करते हैं तो वो कांस्टेंट k के बराबर आता है. ये फंक्शन कहना चाह रहा है. द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर c एंड बाय द डेफिनीशन इट्स वैल्यू एट एनी रियल नंबर इक्वल टू k. लेट c be any real number. Let c be any real number. Let c be any real number. Then limit x tending to c f of x equal to limit x tending to c f of c equal to k. दिस इज़ द फंक्शन. जब हम x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते थे तो एक हमको कुछ फंक्शन मिलता था, जीरो कांस्टेंट या समथिंग मिलता था. उसी तरीके से हम कोई पॉइंट c पर जब हम x की वैल्यू चेक कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ c इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट के बराबर है. सिंस f ऑफ c इक्वल टू k, लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c
f of x for any real number c, for any real number, for any real number c, the function f is continuous at any real number, at any real number, at any real number। हम ये देख रहे हैं कि जब x की जगह दिया गया पॉइंट c को रख रहे हैं f ऑफ c इक्वल टू, तो हमें k बराबर कांस्टेंट के बराबर मिल रहा है। तो इसका मतलब कि जो दिया गया फंक्शन है वो तो डिफाइन है और उसकी लिमिट्स भी एग्जिस्ट कर रही है। देन फॉर एनी रियल नंबर c द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस। इट मीन्स दैट कोई भी कांस्टेंट फंक्शन 1 2 3 4 5 ABC अगर वो कांस्टेंट है तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ये क्वेश्चन एक तरीके का थ्योरम सा प्रूफ हो रहा है कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अनदर क्वेश्चन इज हियर, द फंक्शन इज prove that the identity function prove that the identity function prove that the identity function on real number identity function on real number given by f of x इक्वल टू x, इस तरह से दिया गया है, इज कॉन्टिन्यूअस at any real number, at every real number. This is the question. Prove that the identity function continuous होता है। इसमें ये हमें दिखाना है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा गया था कि कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया जा चुका है पिछले क्लासेस में। solution is here. The function is clearly defined. The function is clearly defined at every point and f of c equal to c for all c belonging to R। हम c किसी भी रियल नंबर से लें, रियल नंबर से एक पॉइंट c लें और उसको हम f ऑफ c में रखें यानी x में रखें तो x मिलेगा। ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है यहाँ पे, f ऑफ x इक्वल टू x means f of c equal to c. This is the identity function. Also limit x tending to c, f of x equal to limit x tending to c of x equal to c. Putting this value, thus
limit x tending to c, f of x equal to c, f of c, and hence the function is continuous, and hence the function is continuous at any real number, This question is say that the identity function is continuous, the constant function is continuous. This question it say that. Now this both question is important anywhere on real number. Clearly you think real number, not complex. Any real number at any point the constant function is continuous. At any real number at any point of real number, the identity function is continuous. This both question is proof that these two postulates, two concept. One concept is here, any real number any point the constant function is continuous. Any real number at any real point the identity function is continuous function. Now again a definition. A real function f, is said to be continuous, A real function f is said to be continuous if it continuous at every point in the domain of f. This is the another definition. A real function f is said to be continuous if it continuous at every point in the domain of f. Suppose f is a function. Suppose f is a function on a closed interval. Suppose f is a function on a closed interval AB. Suppose f is a function on a closed interval AB. Then for f to be continuous, for f means function to be continuous, it need to be continuous. It need to be continuous at every point AB
at every point AB including the end point A and B. This is the very important definition. कि अब तक तो हम फंक्शन सिर्फ पॉलिनोमियल्स में फंक्शन देख रहे थे, कांस्टेंट फंक्शन देख रहे थे, आइडेंटिटी फंक्शन देख रहे थे, लेकिन ये डेफिनीशन ये शो कर रहा है कि अगर कोई फंक्शन इस तरह इंटरवल में हो तब क्या होगा. दिस इज़ द क्लोज्ड इंटरवल. व्हाट इज़ क्लोज्ड इंटरवल? इट इज़ very clearly in polynomial chapter when discussed in class 9th and 11th. What is closed interval? तो this closed interval if the function एक जो फंक्शन f है वो इस तरह से है कि अब पॉलिनोमियल्स नहीं हो करके, अब कोई पॉलिनोमियल्स ना हो करके एक इंटरवल में इस तरह से ए बी इंटरवल में है, तो ये कह रहा है कि ये फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा जब वो फंक्शन ये ए और बी के पॉइंट पर और इसके बाउंड्री पॉइंट पे, इन दोनों को इंक्लूड करते हुए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तब कहेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है. मीन्स इसके बाउंड्रीज को भी इंक्लूड कर लेना है. कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, ए और बी के बीच, मान लेते हैं ये है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, इसके किसी भी पॉइंट पर फंक्शन हम चेक करेंगे, तो कंटिन्यूअस मिलना चाहिए और इस ए को भी इसमें ले लेंगे, इस ए को और इस बी को भी ले लेंगे, यानी फंक्शन इस पॉइंट पर भी इस पॉइंट पर भी इसके बाउंड्रीज पर कंटिन्यूअस होनी चाहिए. अब तक हम ये चेक कर रहे थे, किसी पॉइंट पर हम चेक कर ले रहे थे और उसके लेफ़्ट राइट लिमिट, यहाँ हम इसको चेक कर रहे थे, लेफ़्ट लिमिट देखते थे, राइट लिमिट देखते थे, अगर कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफाइन है तो कहते थे कंटिन्यूअस है. बट इन द क्लोज्ड इंटरवल हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो और इसके बाउंड्रीज पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस हो, इसके बाउंड्रीज को भी इंक्लूड करता हो, तब कहेंगे कि क्लोज्ड इंटरवल कंटिन्यूअस होता है. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज हियर. बाउंड्री, अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ एफ, continuity of f at a means, इसका क्या मतलब, ए पर कंटिन्यूटी, इसका क्या मतलब, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, सॉरी ए, देखिए इस तरह से ए बी. तो अब हम अगर किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इसके इधर तो जाएंगे नहीं क्योंकि ये तो क्लोज्ड है, अब इसके इधर ही चलेंगे, राइट साइड चलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे प्लस लेंगे. तो ए के प्लस चल रहे हैं हम, यानी हम लिमिट जब चेक करेंगे तो ए प्लस पे चेक करेंगे. अब ए माइनस तो है नहीं, रहा नहीं इसमें, ए माइनस तो यहाँ पे बंद है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, दिस इज द राइट लिमिट. and continuity of b means, what means, limit extending to b minus f of x equal to f of b. This is the clear thing. Think here. थिंक हियर, ए प्लस मीन्स यहाँ चलेंगे राइट एंड बी तो हमें लेफ्ट में ही चलना होगा, इधर इस पॉइंट के इधर चलना होगा. जैसे कि अगर हम ये कर ले, दिस इज़ द पॉइंट ए एंड दिस इज़ द पॉइंट बी, तो हम इधर चलेंगे तो ये प्लस में चलेंगे, इधर चलेंगे, जबकि यहाँ पे बी पे तो क्लोज्ड है, तो इसके प्लस में जाना नहीं है, इसके नेगेटिव माइनस में चलना है, इसलिए बी पॉइंट पे नेगेटिव चेक करेंगे, ए पॉइंट पे पॉजिटिव चेक करेंगे. यानी ए पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट एंड बी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट. इट इज़ क्लियर. रिमार्क
लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, ये हम ए माइनस की बात करें, प्लस ले चुके हैं, अब ए माइनस, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी प्लस, माइनस पे डिफाइन, प्लस पे माइनस पे डिफाइन है, प्लस लेके चेक कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ माइनस एंड प्लस डोंट मेक सेंस, कोई डोंट मेक सेंस, कोई मतलब नहीं देता, नहीं दे रहा है ना, कोई मतलब नहीं दे रहा है, डोंट मेक सेंस, इसका कोई मतलब नहीं है। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दिस डेफिनीशन, एज ए consequence of this definition, consequence of this definition, if f is defined, if f is defined only at one point, it is continuous, it is continuous there, that is if the domain of f, if the domain of f is singleton, is singleton, f is continuous, f is continuous। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, अगर फंक्शन जो दिया गया अगर वो सिंगल्टन है तो ऑलरेडी वो कंटिन्यूस होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क। नाउ सी क्लियरली दिस कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू क्रिएट सम प्रॉब्लम्स देन आस्क मी टुडे दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।